ਹੈਲੋ गाइस दिस इज दीपक बांसल पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 7 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, 7 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 5-5 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ठीक है। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 0.25 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਜੀਕੇ ਦਾ ਆਊਗਾ, ठीक है। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਰੀਵਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੈਂਜਸ ਆਫ ਦੀ ਸਾਊਥ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਕਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਜਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਪੂਜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਰਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ठीक है। तो जे आप गल करिए साउथ की, जे आप आह वाला पोर्शन देखिए, सैकेंड मैप देखिए, देखो साउथ के ये वाला जोड़ा होंगे आह वाला पोर्शन होंगे, इनू कहते हैं वैसटर्न घाट्स, ठीक है। जिवें आप मैप देखते हैं तो उपर होंगे नॉर्थ, इधर होंगे वैसट, इधर होंगे अपना ईस्ट, इधर होंगे साउथ, ठीक है। तो जोड़े इधरलियां पहाड़ियां होंदियां ने ये सारियां पहाड़ियां नूं कहते हैं वैसटर्न घाट्स, ठीक है। इधर अपने होंगे ने ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो जिहड़ी अपनी कावेरी नदी है वो अपने वैसटर्न घाट तो शुरू होती है। तो वैसटर्न घाट करनाटका दे विच शुरू होकर वो लंघदी हुई तमिलनाडु दे विच जाती है, फिर वो ईस्टर्न घाट दे विच लंघदे बे ऑफ बंगाल दे विच अपनी गिर जाती है। तो आप हुण इधर करते हैं गंगा नदी के बारे। देखो गंगा नदी अपनी उत्तराखंड तो शुरू होती है, उत्तराखंड तो शुरू होकर वो यूपी दे विच जाती है, यूपी दे विच जाके वो बिहार दे विच लंघदी है, फिर झारखंड के बॉर्डर नूं टच करके वो वैसट बंगाल तो होंदे हुए बे ऑफ बंगाल दे विच गिर जाती है। तो ये रास्ते ने आपां नूं पुछ सकते हैं कई बार की हुंदा कि आपां नूं ऑप्शन दे विच दे रखिया हुंदा भी किहड़ी नदी किस स्टेट दे विचों लंघदी है। कई बार 4 ऑप्शन दिते हुंदे ने, जिवें कावेरी दा आ सकदा तुहानूं भी इन्हां दिते अपने दिते स्टेटां दे विचों किहड़ी स्टेट दे विचों कावेरी नदी नहीं लंघदी। उहदे विचों कुछ स्टेट पा देणगे, जिवें केरला पा देणगे, केरला दे विचों नहीं लंघदी, ठीक है। तां तुहानूं इस तरीके नाल याद होना चाहिए। जे आप गल करिए कावेरी रीवर की लंबाई की तो 765 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। तो यह ब्रह्मगिरी हिल्स तो शुरू होती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहते विच वाज द फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला प्रधान कौन थी, पहला प्रेजिडेंट कौन थी, जिसनों आप INC भी कहने या सिंपली आप कांग्रेस के नाम नाल जानते हैं। वह पहला प्रेजिडेंट इन्होंने पूछा तो यदा आंसर आ जाऊगा WC बैनर्जी। सैकेंड अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा WC बैनर्जी। देखो ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ WC ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੁਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੁਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 29 ਦਸੰਬਰ 1844 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 1906 ਨੂੰ ਇਹ चले गए। वाज ए इंडियन बैरिस्टर, ये की थी इंडियन बैरिस्टर थी। बैरिस्टर का मतलब की होंगे एडवोकेट थी, ये वकील थी, ठीक है। ज़्यादातर आपको पता है जोड़े उस टाइम के पॉलिटिक्स थी, जोड़े पॉलिटिशियन थी वो सारे की थी बैरिस्टर थी, वो सारी की थी एडवोकेट थी, ठीक है। उस तो आगे बढ़ते हैं। कहते इन विच ईयर द गांधी इरविन पैक्ट साइन, किहड़े सन दे विच गांधी इरविन दा पैक्ट जिहड़ा सी वो साइन किया गया। देखो एक चीज़ मैं तुहानूं पहला वाले क्वेश्चन च दसदा। देखो जे तुहानूं इहनूं याद रखना, हुण किवें याद रखोगे कि आपां WC बैनर्जी गया, WC बैनर्जी तो WC आ गया ना, WC आ गया तो WC मतलब वैलकम कराया गया। वैलकम किस दा वैलकम सब तो पहला एज ए प्रेजिडेंट इन कांग्रेस कराया गया थी तो वो थी WC बैनर्जी। तो WC मतलब वैलकम, WC मतलब WC बैनर्जी। तो इस तरीके नाल मैं याद कर सकता। देखो जो तुहानूं इस तरीके दी ट्रिक होर चाहिए ने, मैं कोशिश करूँगा होर ऐड करदा। जे तुहानूं ये पसंद आंदियां ने तो लिखो कि हाँ सानूं होर चाहिए ने, जे नहीं पसंद आंदियां तो आपां इन्हां नूं नहीं ऐड करिया करांगे, आपां सीधा टॉपिक की गल करिया करांगे ते आ जे ट्रिक्स ने ये नहीं ऐड करिया करांगे, क्योंकि मैनूं नहीं पता हुण तुहानूं पसंद आंदियां ने कि नहीं पसंद आंदियां। तो तुसीं जरूर मैंशन करिया करो कि तुहानूं ये पसंद आ रही ने कि नहीं आ रही। ओके कहते इन विच ईयर
ਵਾਸ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਇਰਵਿਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਾਂਧੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਰਵਿਨ। ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ? ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲੋਰਡ ਇਰਵਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰॉय ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਇਸਰॉय ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਇਸਰॉय ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰॉय ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਇਸਰॉय ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਕ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਮਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਮਕ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਇਸਰॉय ਸੀਗਾ, ਇਰਵਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਰਵਿਨ ਜਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਰਵਿਨ ਆ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਆ ਇਰਵਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਵਿਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ WI ਆ ਜਾਊਗਾ। WI ਤਾਂ WI ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 31 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ W ਜਿੱਥੇ ਇਰਵਿਨ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1931 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰॉय ਐਜ਼ ਏ ਵਾਇਸਰॉय ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹ 31 ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 31 ਮਤਲਬ WI ਮਤਲਬ 31। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਫੇਮਸ ਕਸ਼ੀਦਾ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਸ਼ੀਦਾ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਸ਼ੀਦਾ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਸ਼ੀਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ੀਦਾ KSH ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਪੈਲਿੰਗ KSH। ਤਾਂ ਕੋਮਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? KASH। ਤਾਂ ਕਸ਼ੀਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ KASH ਕੋਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫੇਮਸ ਕਸ਼ੀਦਾ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵਾਨਕਬੋਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਵਿਚ ਰਿਵਰ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਨਕਬੋਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਦੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾਨਕਬੋਰੀ
थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो थर्मल पावर स्टेशन करदा की है, देखो पहला इनू मैं जूम करके ठीक है, ये वाली जो पोर्शन थी इन्ना का पोर्शन थी इनू आप की करता जूम करता, जूम करके आ देखो नदी बह रही है, ये माही नदी है, माही नदी के लवे आ गया अपना वनक बोरी थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो अपना थर्मल पावर स्टेशन करदा की है, इस बारे गल करते हैं। देखो नाम तो पता लग गया, थर्मल का मतलब होंगे हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब होंगे हीट, तो ये की करता हीट एनर्जी नूं जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी दे विच बिजली दे विच कन्वर्ट करता है। किवें करदा, देखो हीट एनर्जी जिहड़ी हुंदी है वो पानी नूं की करदी है, स्ट्रीम बना दिंदी है। स्ट्रीम का जिहड़ा प्रैशर हुंदा बहुत तेज हुंदा है, जद आपां बहुत स्टीम नूं जद किसी आपां घुमदी चीज़ ते मारदे हां, ठीक है, किसी व्हील के उत्ते मारते हैं तो वो की मकैनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो मकैनिकल एनर्जी में आप कर सकते हैं कैपेसिटर नाल इलैक्ट्रिसिटी के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके नाल देखते हैं। ठीक है, ये उन्होंने रियल पिक्चर है। ठीक है, इस तरीके से देखते थे। अगे बढ़ते हैं, देखो जे सोनू इस लैक्चर की PDF चाहिए है तो तुसी की करना, टैलीग्राम चैनल के विच जाके सरकारी 99 इकट्ठा पाना है, एक साथ पाना है, तो सोनू इसकी PDF मिल जूगी। जे तुसी मेरे तो होर भी पढ़ना चाहते हो तो तुसी करना यूट्यूब के उत्ते सरकारी 99 इकट्ठा पाना है, उसके कुछ थोड़ा लैक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं बनाना कुछ बिजी होने करके मैं कुछ लैक्चर नहीं बना पाया, तो जल्दी ही थोड़ा होर लैक्चर मिल जाएंगे जे तुसी सरकारी 99 यूट्यूब चैनल पर जाओगे। ठीक है, उस तो बाद अपना मैथ का पोर्शन शुरू होता है, GK का पोर्शन खत्म हो गया, हुण अपना होगा मैथ का पोर्शन। ठीक है, हुण मैथ के पोर्शन के आह जो क्वेश्चन ना ये सब तो इंपोर्टेंट है। रेशियो प्रपोर्शन के जे मैनू कोई सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगता तो यही लगता, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। बैंक के पेपर जो तुम दिते होंगे आ क्वेश्चन सुनू दिखा होगा, जो पंजाब के कोई पेपर दिता होगा जो रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन आऊगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये आऊगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ने, तो करके ये क्वेश्चन तुम भी बहुत बार पहले कराया होगा। ठीक है, उन्होंने करना क्या होंगे, देखो एक कहते एक बैग है अपने को, एक की अपने को बैग है, बैग के कुछ 50 पैसे के कोइन ने, 50 पैसे के कोइन ने सिक्के ने। ठीक है, कुछ 25 पैसे के सिक्के ने। ठीक है, कुछ 25 पैसे सिक्के ने, कुछ 10 पैसे के सिक्के ने, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के, कुछ 10 पैसे के सिक्के ने। एक ही है उन्होंने वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू जे आप वैल्यू की गल करिए तो 50 पैसे के कुछ सिक्के ने, कुछ 25 पैसे के सिक्के ने, तो कुछ 10 पैसे के सिक्के ने। सब तो पहला की करना, पहला स्टैप ये होंगे कि जो पैसे ने उन्होंने रुपीज़ के चेंज कर लो। रुपीज़ के चेंज करने वास्ते की करेंगे, 100 नाल भाग कर देंगे, 100 नाल 100 नाल डिवाइड कर देंगे, तो इनू 100 नाल डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाना, इनू 100 नाल डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाना, इनू 100 नाल डिवाइड करेंगे तो 1/10 अपने को 10 आ जाना। ये हुण की आ गई अपनी रुपीज़ के वैल्यूज़ आ गई, रुपीज़ के अपनी की आ गई वैल्यूज़ आ गई। हुण देखो एक चीज़ तुहानूं होर दसदा, जे मैं कहा कि मेरे को 10 नोट 10 रुपए के ने, 10 नोट ने 10 रुपए के 10 नोट ने, तो मेरे को टोटल किन्ने पैसे है, तो मेरे को होंगे 100 रुपए, क्योंकि मैं की करूँगा वैल्यू नूं ते किन्नी अमाउंट है तो किन्नी वैल्यू है एक दी, तो उसनूं मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मेरे को रुपीज़ आ जाते हैं। तो इस तरीके नाल करांगे। देखो आ की अपने को अमाउंट है। ठीक है, आती अपनी अमाउंट, आती अपनी वैल्यू, तो आप अमाउंट पहले लिख लेने, अमाउंट किन्नी आ जाएगी अपनी 5/9 रेशियो 4। ठीक है, ये आ गई अपनी अमाउंट। हुण टोटल वैल्यू सुनो मैं की क्या था कि टोटल वैल्यू किवें कढदे हुंदे आ, वैल्यू नूं एक दी वैल्यू नूं उहदे टोटल अमाउंट नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू अपने को आ जाती है। तो 1/2 नूं जे 5 नाल गुणा करते हैं तो अपने को क्या आ जाता है 5/2 आ जाना। 1/4 नूं 9 नाल गुणा करते हैं तो अपने को 9/4 आ जाना। 1/10 नूं जे 4 नाल गुणा करते हैं तो 4/10 आ जाना। ठीक है, तो यह कहते अपने को टोटल जी वैल्यू है वो कितनी है 206 है। तो ये आप इतों टोटल कढ़ने वास्ते की करेंगे, इन्होंने की कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, हुण आप ऐड किवें करते हैं, देखो बचपन तो आप ऐड करते हो कि जब भी अपने को फ्रैक्शन के विच वैल्यूज़ होंदियां ने उन्होंने किस तरीके नाल ऐड किया जाता है। सब तो पहले की करेंगे आप इन्हां दा सारिਆਂ दा एलसीएम ले लेंगे, जो कि अपना आ जाना 20। तो इधर करेंगे 10 नाल गुणा तो 50, इधर की रखेंगे 9 5 45, इधर की करेंगे 8। तो हुण आप इन्हां नूं की कर देने ऐड कर देने, ये आ जाना अपना 95 तो आ जाना अपना 103/20। तो 103/20 अपनी टोटल की आ गई वैल्यू आ गई। लेकिन वो तो कहते 206 आ, अपनी आई है 103/20, तो कुछ तो गड़बड़ है। यदा मतलब की है कि 103/20 की जी वैल्यू किहदे बराबर होनी चाहिए थी, 206 के बराबर होनी चाहिए थी। जी एक की वैल्यू किहदे बराबर होनी चाहिए थी, इतों आप पहले कट दें, ये कट जूगा अपना 2 तो 1 की वैल्यू किहदे बराबर होनी चाहिए थी, 20 2 नाल गुणा करके 40 दे, 1 की वैल्यू 40 के बराबर होनी चाहिए थी। ये कहते फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप रिस्पैक्टिवली, दसो किन्ने कॉइन सीगे, किन्नी अमाउंट थी। ठीक है, किन्नी अमाउंट थी, तो आप की है 5 है, तो आप कितनी कढ़ी 40 कढ़ी है, तो इनू भी करा 40 नाल गुणा कर देंगे, इनू भी 9 भी 40 नाल गुणा कर देंगे, तो 4 भी 40 नाल गुणा कर देंगे। तो अपने को कितनी आ जूगी, इधर आ जूगी अपने को 200, इधर आ जूगी अपने को 9 चौका 36, इधर अपने चौकम चौकी 16, तो 200 360 तो
ये अपना बन गया 200 360 ते 100 अपना सी अपना किया जाना आंसर आ जाना। ठीक है, हम अगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपना आ गया मैंसूरेशन का। जे तुसी पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंसूरेशन के क्वेश्चन जिन्ने ज़्यादा हो सके जरूर करो, क्योंकि मैंसूरेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ने। पटवारी के स्पैशली मैंशन किया होया कि मैंसूरेशन जरूर बन गए। ठीक है, तो मैंसूरेशन के जिन्ने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो तो कर दो। इस करके मैं की करता पटवारी का जिन्ने भी मॉक टेस्ट बनाना वो एक क्वेश्चन जरूर मैं मैंसूरेशन का ऐड कर देना। ठीक है, कहते एक रैक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। ठीक है, आप की करते हैं कि पार्क बना लें। पार्क दे विच दी जिहड़ी लंबाई है वो कितनी अपनी 60 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी अपनी 40 मीटर आ जाएगी। 40 मीटर वाइड हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ ए पार्क एंड रेस्ट ऑफ पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज ए लान। ठीक है, इन्होंने की करा कहते बिचों बिल्कुल क्रॉस सैक्शन मतलब 2 रस्ते आपस कट रहे हैं, 2 रस्ते अपने को की ने कटते हैं, ये अपने को की बन गए 2 रस्ते बन गए। ठीक है, कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ ए पार्क। ठीक है, तो जो बाकी कहते बच गया वो की लान है, मतलब अपना की बगीचा। आ केड़ा आ गया अपना बगीचा आ गया। ठीक है, इतने की है घाह फूस उगाया हुआ। ठीक है, बगीचा। ठीक है, उस तो कहते इफ एरिया ऑफ ए लान इज़ 2109 स्क्वायर मीटर। जोड़ा यह बगीचा है यदा एरिया दे रखे अपने को, बगीचे का जोड़ा एरिया है आड़ा बगीचा यदा एरिया दे रखे अपन 2109 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 2109 स्क्वायर मीटर दे रखा है। दैन वट इज़ दी विड्थ ऑफ ए रोड। अब विड्थ दसनी है, यदि विड्थ आप मान लेना की है एक्स है। ठीक है, ये विड्थ आप दसनी है। सब तो पहले आपको की दिता होया बगीचे का एरिया दे रखा। बगीचे का एरिया किमें कटांगे, जो मैं टोटल एरिया के विचों आज सड़क का एरिया माइनस कर दा तो किहदा बचूगा, बगीचे का बचूगा। आप वही करते हैं टोटल एरिया कितना, देखो टोटल एरिया जब रैक्टेंगल का कढ़ना होंगे तो अपन कहते हैं लेंथ नाल ब्रैड्थ नूं की करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अपने को की निकल जाता टोटल एरिया निकल जाता है। तो मैं की करूँगा 60 नूं 40 नाल गुणा कर दूंगा तो मेरे को की आ गया टोटल एरिया आ गया। वो आ सड़क पहली सड़क का एरिया जो मैं माइनस करा तो की आ जाऊगा, यदी जी चौड़ाई है वो एक्स है, यदी जी चौड़ाई है वो एक्स है, तो यदी जी लंबाई है वो कितनी अपनी 40 है। ठीक है, आ अपनी लंबाई कितनी आ गई, यदी 40 आ गई। हम आप करते हैं दूजी सड़क को करते हैं माइनस करते हैं, यदी जी चौड़ाई है वो एक्स है, यदी जी लंबाई है वो कितनी आ गई 60 आ गई। तो इन्हें भी आप करते हैं माइनस कर दें। उस तो बाद आप ऐड करांगे। देखो आ स्टैप जरूर याद रख लो, ये स्टैप की गलती करते हैं कि आह दोबारा एक बार आपको ऐड करना पऊगा, क्योंकि सड़क के जब आप इधर ही सड़क ले रहे थी तो यह ऐड हो गया थी, फिर दूजी बार फिर सड़क लेती फिर ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, मतलब 2 बार आप माइनस करता। आप एक बार करना थी, 2 बार माइनस करता तो एक वापस आप दे दें। जब एक बार वापस देता तो जोड़ा यह एरिया आऊगा कि बराबर है, यह लान के बगीचे के एरिया के बराबर है, जोड़ा कि अपना 2109 स्क्वायर मीटर। तो 2109 स्क्वायर मीटर के बराबर आप कर देंगे। हूँ आप करना बस इन सोल्व करना, 6 चौका 24 तो इतने 2400 आ जाना। इतने अपना की है 60x 40x के आप ऐड कर देंगे तो 100x आ जाना। ठीक है, प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2109। ठीक है, 2109 अपना आ जाना। उस तो बाद की करेंगे अपना एक्स स्क्वायर आ ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, आह 21 माइनस 100x ले लिया। ठीक है, इधर की है 2400 है, एक ही करूँगा इधर आके माइनस हो जाऊगा तो अपने को क्या जाना है प्लस का कितना बन जाना है 291 इज इक्वल टू 0। तो अपने को बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, इन्हू सोल्व करना बैठ जाओ। जो इन्हू सोल्व करने लग गए ना तो तुम यही करते रह जाओगे। हुण इन्हू सोल्व किवें करना, देखो ये जिहड़ियां वैल्यू दी हुई ना एक्स दी वैल्यू ने की ने, सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई दी वैल्यू ने तो यही एक्स दी वैल्यू ने। आप की सड़क की चौड़ाई एक्स बनी है ना, तो एक्स की ही वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप पुट करके देख लाँगे। जे मैं तो 1 पुट करदा तो 1 आ जाना, इतने क्या आ जाना माइनस 100, तो यह माइनस 99 बन जाने। जे माइनस 99 मैं ये माइनस करदा कि 0 बनता नहीं बनता, आप ले लेने 2, जे 2 2 4 तो इधर आ जाना 200, तो अपने को आ जाना है अपने को 96। जे मैं 291 विचों 96 माइनस करदा 0 बनता नहीं बनता। हूँ आप लेने 3 3 9, इधर 9 बन जाना है, 3 गुणा कर दें 300 बन जाना है, तो इधर बन जाना अपना 291। ठीक है, तो 300 के 9 माइनस किया 2 माइनस का 291 प्लस 291 तो अपने की बन जाना 0 बन जाना। तो 0 के बराबर आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया सी आ गया। ठीक है, तुम इस तरीके करना बाय ऑप्शन करना है। ठीक है, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के चक्कर च ना पै जाओ। जो तुहाडा कैलकुलेशन तेज है तो तुम कर सकते हो, जो नहीं हैगी तब बाय ऑप्शन तुम जा सकते हो। अगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना की आ गया, अगला क्वेश्चन अपना आ गया एजेस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना है 3rd, किसी ने मैंने कमेंट करा थी कहते जी नंबरिंग कर दिया करो। ठीक है, इस बार मैं करना भुल गया तो मैं दस देना ये 3rd क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन की कहता इफ 10 ईयर्स
इन 10 ईयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वाज 10 ईयर एगो। मतलब ए की जी उम्र होगी 10 साल बाद वो दुगनी होगी बी की उम्र तो 10 साल पहला जी बी की उम्र थी वो तो की होगी दुगनी होगी। मतलब जे मैं मान ला कि ए की उम्र जी हैगी है वो वाई है, ए की उम्र की है वाई है, बी की उम्र अज की उम्र बी की उम्र अज की उम्र की है एक्स है, तो ए की उम्र 10 साल बाद कितनी होगी तो वाई प्लस 10, क्योंकि जे अज वाई है तो 10 साल बाद वाई प्लस 10 होगी। ठीक है, बी की 10 साल पहला कितनी उम्र होगी तो एक्स माइनस 10, तो 10 साल पहला एक्स माइनस 10 होगी। इफ़ ए इज़ नाउ 9 ईयर ओल्डर दैन बी, ए की उम्र कितनी है वाई है, तो कहते वाई की वैल्यू की है अपनी एक्स प्लस 9। कहते जी वाई की उम्र है, वाई की है ए की उम्र है, तो वाई की उम्र जी मतलब ए की उम्र जी है वो की है बी की उम्र नालों 9 ज़्यादा है। तो बी की उम्र आप एक्स मनी थी, ए की उम्र आप वाई मनी थी, तो वो की कर देंगे 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, हूँ आप की क्या इन्होंने कहते जी 10 साल बाद जी ए की उम्र 10 साल बाद आऊगी वो बी की 10 साल पहले की उम्र नालों दुगनी है, तो आप की करेंगे बराबर करके 2 ਨਾਲ गुणा कर देंगे क्योंकि दुगनी है। जे मैं बी की उम्र 2 ਨਾਲ गुणा करदा तो ए की उम्र आ जाऊगी, तो करके ये दुगनी है। ठीक है, तो आप की कढ़नी है हूँ आप की कढ़नी है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, जी प्रेजेंट वो एज है बी की वो कितनी है एक्स है, तो आप एक्स की वैल्यू कढ़नी अपन वाई की वैल्यू की लोड़ नहीं, तो आप की करेंगे वाई की वैल्यू जी आ हैगी इतने पुट कर लाँगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स प्लस 9 प्लस 10, ये जी वाई की वैल्यू है मैंने आ वाली पुट कर ली। ठीक आ जी चीज़ थी वाई की वैल्यू मैंने इतने रख दी, तो अपने को आ जाना इज इक्वल टू 2x माइनस 20 जो 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करता, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। ठीक है, तो यही जो 19 है ये माइनस का बी इधर आके प्लस का हो जाना है, तो इधर 2x के विचों x माइनस करके x आ जाना, तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जानी है 39, तो x की वैल्यू 39 आ गई, मतलब b की जी प्रेजेंट एज है वो कितनी है 39 है। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाना। अगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन अपना किहड़ा है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। कहते बाई सैलिंग 45 लैमन फॉर ₹40, जे आप मैं 45 लैमनस बेचदा 40 रुपीज़ दे, ठीक है, तो मैनू 20% का की होंदा लॉस होंदा। ठीक है, 20% का मैनू लॉस होंदा, घाटा पैंदा है। हाउ मैनी शुड ही सैल फॉर ₹24 टू गेन 20%। वो कहता किन्ने लैमन वो बेचे कि उन्होंने 24 रुपये के किन्ने लैमन बेचे कि उन्होंने 20% का लाभ हो जाए। देखो 45 लैमन वो 40 रुपये के की करता है बेचता है, तो उन्होंने 20% का की होंदा लॉस होंदा। एक ही आ गया अपना सेलिंग प्राइस आ गया। आप हम की करेंगे पहले कोस्ट प्राइस करेंगे, कोस्ट प्राइस किमें करेंगे, देखो 20% का लॉस होंदा, तो 20% मैं की लिख सकता, मैं उन्होंने लिख सकता 1/5, तो यह की आ जाऊगा मेरा कोस्ट प्राइस आ जाऊगा, ये आ जाऊगा मेरा लॉस। जो कोस्ट प्राइस के विच मैं लॉस नू ऐड करदा, ठीक है, लॉस नू की करदा ऐड करदा, ठीक है, क्योंकि लॉस माइनस का होंगे, तो आप कह सकते हैं लॉस नू माइनस करना। ठीक है, लॉस की होंगे अपना नैगेटिव होंगे, तो एक ही आ जाऊगा अपना क्या आ जाऊगा सेलिंग प्राइस आऊगा, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाना 4 आ जाना, तो कोस्ट प्राइस मेरा 5 आ जाना। एक ही आ गया मेरा, ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस, नीचे वाला की होंगे मेरा कोस्ट प्राइस होंगे। 1/5 किमें बनया थी, बी नू आप की करता 100 नाल भाग करता। ठीक है, तो अपने को की है सेलिंग प्राइस की वैल्यू 40 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू अपने को की 40 है, इतने कितनी 4 है, तेन 10 नाल गुणा कराया, तो कोस्ट प्राइस में अपना 2 नाल गुणा कर देंगे, तो सी पी कितनी आ जाएगी अपने को 50 रुपये, 50 रुपये की आ गई अपनी कोस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, तो उस तो बाद ये जी कोस्ट प्राइस आई है ये 45 लैमन की आई है। 45 लैमन की जी कोस्ट प्राइस है वो कितनी है 50 रुपये है, तो 1 लैमन की जी कोस्ट प्राइस होगी 50/45, मतलब 9 सॉरी इतने आ जाना अपना 10, नीचे आ जाना अपना 9, तो 10/9 रुपीज़ अपनी 1 लैमन का की है कोस्ट प्राइस है। हूँ अगे बढ़ते हैं, कहते वो कुछ लैमन बेचता है 24 रुपये के, तो उन्होंने किन्ने गेन होंगे 20% का गेन होंगे, मतलब एक्स लैमन मान लो किन्ने दे बेचता 24 रुपीज़ के बेचता, तो 1 लैमन किन्ने का बेचूगा 24/100 रुपये का बेचूगा। आ गया अपना सैलिंग प्राइस, एक नू बेचने का सैलिंग प्राइस आ गया, एक नू खरीदने का की आ गया कोस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो उन्होंने 20% का की होंगे लाभ होंगे। आप की करांगे सैलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस गुणा 100, तो की आ जाऊगा अपना 20% का की हो रहा थी अपने प्रॉफिट हो रहा थी। सैलिंग प्राइस कितना, सैलिंग प्राइस है अपने को 24/x 1 लैमन का। ठीक है, 1 लैमन का 24/x है, इतने कि आ जाना अपने को कोस्ट प्राइस आ गया 10/9, नीचे फिर कोस्ट प्राइस 10/9 गुणा 100, एक के बराबर जाना अपने को 20 के बराबर रहना, इनू कट देंगे आ जाना अपना 5 ते, इतने करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे, तो 9 चौका 36, 3 18 18 18 तो 21 216 माइनस 10x, नीचे आ जाना अपना 9x, तो नीचे आ जाना अपना 10/9। ठीक है, ये आ गया अपने को 10/9, तो इधर आ जाना अपने को 1/5,
ये 9 नाल आपां की करांगे आ 9 कट देंगे, ठीक है। ये 10 अपना उपर चला जाना है तो की आ जाना अपने कोल, ठीक है। ये बन जाना अपने कोल 21,216 माइनस 10 अपॉन 10x इज इक्वल टू 1/5, ये कट जाना है 2 ते, ठीक है। तो अपने को 216 माइनस 10x इज इक्वल टू 2x। हम अपना की बन जाना है 216 इधर आ जाना है तो माइनस का 10 उधर प्लस हो जाएगा तो 12x आ जाऊगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216 डिवाइड बाय 12। जब इनू कटांगे तो अपने को 12 1 12 कितना बच गया अपने को, बच गया अपने को 996 12 8 96 12 8 96 तो 18 अपना क्या जाना आंसर आ जाना, ठीक है। 18 की हो गया अपना आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के बाद देखो अगला क्वेश्चन अपना की आ गया सिंपलीफिकेशन आ गया। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आने की बहुत चांस है पटवारी के एग्जाम के, इसमें आप किमें सोल्व करेंगे। देखो ये किमें सोल्व करेंगे, पहला 40 रूट एक्स मान लेने, क्वेश्चन मार्क में मैंने एक्स मान लिया, 32 रूट एक्स मान लेने, ठीक है। ये आ जाना अपना 320, ठीक है। उरे 48 है, ठीक है। 48 रूट एक्स 32 रूट एक्स इज इक्वल टू 320। आप क्या करते हैं हूँ अड़ते पढ़ते कट देने, ये कट जाना अपना 40 ते, ये कट जाना अपना 4 ते, ये कट जाना अपना 6 ते, ठीक है। तो आप इधर भी रूट एक्स है, इधर भी रूट एक्स है, रूट एक्स कॉमन कट लाँगे तब बच्चे अंदर कितना 6 ते 4 6 4 कितना 10 इज इक्वल टू 40। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 40 बटे 10, ये कट जाना अपना 4 ते। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 4, इधर रूट है इधर क्या आ जाना स्केयर हो जाना है, तो चौकम चौकी 16, तो 16 कितना हो जाना अपना आंसर आ जाना सी अपना आंसर आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ का पोर्शन अपना खत्म हो गया, हूँ अपना शुरू हो गया कंप्यूटर। देखो कहते विच कंपनी डिवेलप्स दी IP TCP प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्किंग, केड़ी कंपनी डिवेलप कर दी है IP प्रोटोकॉल या TCP प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्किंग। तो इसका आंसर आ जाऊगा अपना डारपा, DARPA डारपा, ठीक है। देखो इंटरनेट सब तो पहले देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होंदा की है। देखो आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट में आप कुछ भी सेंड करते हैं, ठीक है। कोई मैसेज सेंड करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ रूल्स रेगूलेशन आपको की करने होंगे फॉलो करने होंगे। वो जो रूल्स रेगूलेशन होंगे वही इंटरनेट के होंगे प्रोटोकॉल्स होंगे। ये जी इन्फॉर्मेशन है, देखो जब आप कोई चीज़ किसी को सेंड करते हैं तो ये अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या एड्रैस होंगे, IP एड्रैस होंगे जो अपना चला जाता। देखो इस तरीके ना ये कि अपना IP एड्रैस है, ये IP एड्रैस मैं किसी को सेंड करदा, ठीक है। ये तो मेरा ये जिन्होंने मैं सेंड करना है तो इंटरनेट राही उस एड्रैस पर पहुँच जाता है। ये रूल रेगूलेशन नाल होंदा है। तो किहड़े होंदे ने, वो होंदे ने इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूल रेगूलेशन होंदे ने, जिन्हों कौन बनाता वो बनाता डारपा, ठीक है। यही अपना की क्वेश्चन थी, यही की अपना क्वेश्चन थी कि विच कंपनी डिवेलप IP TCP प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्किंग, वो है अपना डारपा, ठीक है। ये देखो आ है डारपा का लोगो, कितों की कंपनी है, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA की यह कंपनी। उन्होंने याद किमें करना है, देखो आप कहते डारपा, देखो ये क्यों बनाए गए ने कि कुछ गलत काम ना हो, कोई ऐसा ना हो, कोई मैनिपुलेट ना करे, कोई किसी का पैसा ना चोरी कर सके, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन ना कढ़ सके, ठीक है। जो कुछ करता भी है तो वह की होंगे IP एड्रैस आ जाता, एड्रैस आ जाता भी ये इस बंदे ने कराया, ठीक है। तो डारपा मतलब डर पाने वास्ते है भी लोगों के डर पै जाए भी गलत काम ना करना, तो किमें कर सकते हो डारपा कि डारपा हजे भी डारपा नहीं, फिर तेन फड़ लांगे असीं। अगे बढ़ते कंप्यूटर स्पीड इज़ मेजर्ड इन, कहते कंप्यूटर की स्पीड किमें मेजर की जाती है, किस द्वारा मेजर की जाती है, वो की जाती है क्लॉक साइकिल द्वारा, क्लॉक साइकिल। देखो ये अपनी जी स्पीड है वो कहते ओसीलेट करती है, इस तरीके ओसीलेट करती है, ठीक है। अपनी जी कंप्यूटर की CPU की स्पीड है वो इस तरीके की करती है ओसीलेट करती है। वो यही देखते हैं भी 1 सेकंड के विचों कितना ओसीलेट कर रही है। जे तो 1 सेकंड के ज़्यादा ओसीलेट करती है साइकिल के तो वो की है स्पीड की है CPU की ज़्यादा, जो घट कर दी है 1 सेकंड के की कर रही है घट ओसीलेट कर रही है तो वो स्पीड की होंगी है घट होंगी, ठीक है। इस तरीके आप कर सकते हैं। देखो द हायर क्लॉक स्पीड द मीनस फास्टर CPU। अगला क्वेश्चन देखो स्पैशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज जो स्पैशल इफेक्ट यूज किए जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के वास्ते उसनों की कहते तो उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरीके तुसीं देखी होनी पावर पॉइंट जब चलाया होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई होगी तो जी प्रेजेंटेशन मैं तुहानूं दिखा रहा भी मैं पावर पॉइंट के देख डिजाइन के नाल, जे आप डिजाइन देखते हैं डिजाइन के नाल अपना ट्रांजिशन लिखा होंगे, जब आप इनू खोलते हैं तो अपने को आ जाते हैं इस तरीके के इफेक्ट्स आ जाते हैं, फेड करना है, पुश करना है, वाइप करना है, किस तरीके तुसीं इनू प्रेजेंट करना चाहते हो। होंगे नहीं पेज एकदम खुल जाता है इस तरीके साइड तो आ जाता है, उपरों आ जाता है, कोई नीचों खुल जाता है, वो सारे की होंगे इफेक्ट्स होंगे, वो कि आते हैं ट्रांजिशन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कहते वट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN की फुल फॉर्म दसी है, फुल फॉर्म आ गई इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नैटवर्क। इंटीग्रेटेड की होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे जब सब कुछ कट्ठी सर्विस मिलती है, इक्को जगह पर सारी सर्विस मिल जाए, ठीक है। डिजिटल केड़ा हो गया आप जो यूज़ करते हैं डिजिटल नैटवर्किंग, ठीक है। यही की अपना ये है अपना टैलीफोन, ठीक है। टैलीफोन का आप की करते थे यूज़ करते होंगे, ठीक है। टैलीफोन का यूज़ क्यों करा करते थे कि ये वॉइस के नाल वॉइस तो ये की करता सेंड करता थी रिसीव करता थी, वॉइस के नाल डाटा जोड़ा है वो भी सेंड तो रिसीव करता थी, करके आप इंटरनेट यूज़ करने वास्ते भी यूज़ करते थे। तां की थी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नैटवर्क, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डिजिटल नैटवर्क सर्विस आपको ये प्रोवाइड करवाता थी, ठीक है। इस तरीके तुम याद कर सकते। अगे बढ़ते हैं, कहते डेजी व्हील ड्रम चेन एक्सैक्ट्रा आर एक किस चीज़ के एग्जाम्पल ने। डेजी व्हील हो गया, ड्रम हो गया, चेन हो गया, एक किस दी एग्जाम्पल ने, ये है ने अपनी प्रिंटर दी एग्जाम्पल। आ तुम देख सकते हो, ये आ गई अपनी डेजी व्हील, ये अपना ड्रम आ गई, ये अपनी चेन आ गई। ये होंगे की देखो अपनी की होगी वाइट शीट होगी, ठीक है। ये अपनी आ गई शीट, ये शीट के आ की हैमर है, ये सट मारदा। ये की ने नंबर ने जोड़े आप नंबर छापने ने, ठीक है। कितने छापने ने, पूरी लाइन ई दी है, ये पूरी लाइन डी दी है, जोड़ा भी नंबर छापना वो की घूम के वापस आ जाता है, ठीक है। ये सट वजदा रिबन होंगे जिते इंक लगी होंगी है, तो ये पेपर के उत्ते सट मारदा तो नंबर जोड़ा छप जाता जिथे भी छापना है। जे ई है मान लो ई आप उरे छापनी है तो उरे सट मारूगा, ये जिथे जिमें करता बहुत जल्दी होंगे, मैकेनिज्म इस तरीके बनाया बहुत जल्दी होंगे, तो उस तरीके ये सट मारदा। अगे बढ़ते हैं, ओके। तो अपनी हुण कंप्यूटर खत्म हो गया, हुण अपना केड़ा गया रीजनिंग आ गई। देखो हुण अपनी की होगी रीजनिंग शुरू होगी। रीजनिंग का है पहला क्वेश्चन है, कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्रोफोन विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। देखो ये की करना है, जिवें मान लो मैंने की पार्क है, मैंने पार्क है ए टी सी पार्क है, ठीक है। ATC पार्क है, तो ये अखर ने जोड़ा उही गैप बनता जिन्हें अल्फाबेट च होंगे। देखो ए तो सी के किन्ने का गैप पै रहा, 2 का गैप पै रहा है, इतने 1 का पै रहा जी, इतने फिर 2 का पै रहा, 2 का गैप पै रहा। तो अल्फाबेट इंग्लिश के किन्ने का पैंदा ABC, तो भी 2 का पैंदा, ए तो बाद की आता B छड्ड के C आता तो 2 का गैप पैंदा, तो इतने भी 2 का पै रहा, इतने भी 2 का पै रहा, तो किन्ने बार बन रहा, 1 बार बन रहा है। यही चीज़ आप देखनी है कैस्ट्राफोन च देखनी है। सब तो पहले की कहना है कैस्ट्राफोन पाना CASTRAPHONE, ठीक है। ये अपना पहला कैस्ट्राफोन। हुण C किन्ने नंबर पर आता, C ने अपना आता 3जे नंबर पर, A आता 1 नंबर पर, S आता 19 नंबर पर, T आता 20 नंबर पर, R 18 1 16 8 15 14 ते 5, ठीक है। ये नंबरिंग है, याद कर लो कि A जोड़ा होंगे 1 नंबर पर होंगे, B 2 पर होंगे, C 3 पर होंगे, इस तरीके Z किन्ने होंगे 26 नंबर पर होंगे। ये जी जो तुम ये नंबरिंग याद कर ली, थोड़े जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जा करने, ठीक है। ये नंबरिंग जरूर याद करनी है। 3 है, 3 तो बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा, 19 20 इधर इधरले पासे बन रहा है, 19 तो बाद 20 बन रहा है, ठीक है। इकट्ठे ही आता तो इकट्ठे ही है, 19 तो बाद 20, तो एस के नाल T आ रही है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। इतने आ 18 19 20 नहीं आता, 18 19 20 इधर नहीं आता, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 16 17 18, देखो 16 तो बाद एक छड़ गया, 18 होंगे, 1 आ गया, 18 19 20 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 8 9 10 15 16 17 18 19 20, देखो 15 16 17 18 19 20 20 तो आता, 14 तो बाद 15 आता, 16 17 18 19 20, ठीक है। इतने भी एक बन गया, ठीक है। 5 6 7 8 5 6 7 8 एक अपना ये बन गया, तो टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, तो अपने कितने बन गए 6 अपना आंसर है ना। इस तरीके देखना कि किन्ने का गैप जो ओरिजिनल अल्फाबैटिक ऑर्डर के जिन्ने का गैप है वही गैप उन्ना पूरे बनना चाहिए। पहले नहीं की करो, देखो कोडिंग कर लो, उस तरीके जल्दी कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन केड़ा है, अगला क्वेश्चन अपना है सीटिंग अरेंजमेंट का। ये कहते PQRSTUV एंड W किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 जने, ठीक है। आर सीटिंग राउंड द सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल के बैठे ने 8 जने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जने बैठे ने, और फेसिंग टू द सेंटर, सेंटर वाल फेस कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर वाल फेस करने का मतलब जो इन्हों का राइट है वो क्या आजूगा अपना एंटी क्लोकवाइज आजूगा, राइट एंटी क्लोकवाइज आजूगा, तो अपना जो क्लोकवाइज है वो क्या आजूगा अपना लैफ्ट आजूगा, ठीक है।
कहते P इज़ सैकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज़ सैकेंड टू द राइट ऑफ T। जे T उरे है तो अपना कौन है P एक छड्ड के सैकेंड ते P अपना उरे बैठेगा, कितों भी शुरू कर सकते हो क्योंकि सर्कल है सारा, ठीक है। तो कोई कॉर्नर तो है नहीं, कितों भी शुरू कर सकते हो। जो T अपना उरे है तो अपना सैकेंड ते कौन बैठूगा, P बैठूगा राइट ऑफ T, ठीक है। T का राइट किधर है, इधर है, ठीक है। T का राइट किधर है, इधर है। तो इधर राइट दे विच अपना कौन बैठूगा, P बैठूगा, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या दी, तो इधर क्लॉकवाइज की बनता है इधर, ठीक है। इधर क्लॉकवाइज बनता है, तो देखो राइट दे विच की है क्लॉकवाइज, राइट दे T दे राइट दे विच कौन बैठा है, P बैठा। कहते T इज़ द नेबर ऑफ R एंड B। जो T है वो किहदा नेबर है, R ते V का। आप कह सकते हैं भी जे R ते V उरे भी आ सकते हैं, R ते V उरे आ सकते हैं, आपको नहीं पता भी R भी किधर आऊगा, R ते V इधर भी आ सकता, R इधर भी आ सकता, V उधर भी जा सकता, V उधर भी जा सकता, ठीक है। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, S की है P का नेबर नहीं है, S उरे नहीं आ सकता, ठीक है। S नाल P नहीं बैठ सकता, P उरे बैठा तो S उरे नहीं बैठ सकता। V इज़ द नेबर ऑफ U, V की V U का नेबर है, ठीक है। जे V आप उरे लेने तो U नहीं बना सकते, क्योंकि V उरे आ गया इधर, T इधर आऊगा, V अपन उरे लेना पऊगा, क्योंकि V जे उरे लवांगे तो आप V दे नाल U नूं नेबर बनाना पऊगा। तो जे V उरे आ गया तो अपना R की आऊगा, A उरे आ जाऊगा, जी आ कन्फ्यूजन दी अपनी की होगी खत्म होगी, ठीक है। क्याऊ इज़ नोट बिटवीन S एंड W, क्याऊ जिहड़ा हैगा वो S एंड W दे विच नहीं हैगा, ठीक है। तो S तो उरे नहीं आता, S जा अपना उरे आ सकता, S जा तो अपना उरे आ सकता, S जा तो अपना उरे आ सकता, ठीक है। दोनों जगह एक S अपना आ सकता, ठीक है। ये कहते क्याऊ इज़ नोट बिटवीन S एंड W, जो क्याऊ है वो S तो W के बिच नहीं बैठ सकता, ना उरे बैठ इन्होंने बिच नहीं बैठ सकता। तो W इज़ नोट बिटवीन U एंड S, तो जो W है वो U तो S के विचकार नहीं बैठ सकता, ठीक है। U तो S नहीं बैठ सकता। जे मैं S नूं उरे लेना, ठीक है, जे मैं S नूं उरे लेना तो मैनू की करना पऊगा, जे मैं S बॉक्स वाला S है तो मैनू की करना पऊगा, W उरे ले नहीं सकता क्योंकि S तो U के विच बैठ नहीं सकता, तो नहीं S U इधर है तो आप उत्थे की कर सकते W नूं ले सकते। उरे मान लो W ले लिया, उरे की ले लूँगा मैं, किहड़ा बच गया अपना क्याऊ, तो क्याऊ नूं मैं उरे ले लूँगा, ठीक है। तो एक मेरा ये केस बन सकता है, ठीक है। तो दूजा केस किहड़ा बन सकता है, जे मैं S नूं उरे लेना, हाँ तो S सर्कल वाला, तो मैं उरे की करूँगा, तो S ते विच S उरे आ गया, S उरे आ गया, इधर आ गया U आ गया, तो इधर की लूँगा मैं क्याऊ ले लूँगा, तो इधर मैं की ले लूँगा, इधर मैं W ले लूँगा। तो एक केस मेरा ही बन सकता है, ठीक है। एक केस बन सकता है। क्वेश्चन की कहता V इज़ द नेबर, क्वेश्चन अपना की कहता हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू U के सामने कौन बैठा, U आती, U के सामने कौन बैठा है, P बैठा है, तो ये आंसर क्या है ना P आ जाए। देखो आ चीज़ अपन सोल्व करने की लोड़ भी नहीं सी, इतने दो केस बन सकते हैं, ठीक है। दो केस बन सकते हैं, S उरे भी आ सकता है, S उरे भी, S उरे नहीं आ सकता, तो S उरे भी ले लो, S उरे भी ले लो। जे S उरे है तो W उरे आऊगा, क्या उरे आऊगा, जे S उरे है तो क्या उरे आऊगा, तो W उरे आऊगा, ठीक है। तो ये तुम केस बना सकते हो, पर आपको जरूरत नहीं थी, मैं वैसे तुहानूं सोल्व करके दिखाता। अपना क्वेश्चन इत्थे खत्म हो गया थी भी U के सामने कौन है, P आ जाऊगा। अगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना आ गया ब्लड एंड रिलेशन का आ गया। कहते ABCDE एंड F आर 6 मैंबर ऑफ फैमिली, किन्ने 6 मैंबर ने। 1 कपल हैज़ ए पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। देखो जे तो मेल है, जे तो ब्लड रिलेशन के मेल है तो उन्होंने की करना बॉक्स के लिखना है, जे फीमेल है तो उन्होंने की करना सर्कल के लिखना, ठीक है। जे हसबैंड वाइफ ने तो मेल तो फीमेल इकट्ठा लिखना है, जे ब्रदर एंड सिस्टर ने तो आ गया मेल, आ गई फीमेल, इन्होंने अलग करना है। ये आ गए ब्रदर एंड सिस्टर, ये आ गए ब्रदर एंड सिस्टर, ये आ गया अपनी हसबैंड एंड वाइफ, ठीक है। ये आ गया अपनी हसबैंड एंड वाइफ, ये आ गई अपनी फीमेल, ये आ गया अपना मेल, ठीक है। इस तरीके आप लिखना है। हम क्वेश्चन करते हैं। देखो एक गल होर, जे तो ज़्यादा उम्र के ने, ठीक है, फादर ने तो उपर आएंगे, जो उन्होंने बेटा बेटी ने थले आएंगे, ठीक है। होर नीचे जे उन्होंने भी बेटा बेटी ने तो होर नीचे आ जाएंगे। इस तरह हायरार्की के आप लिखना है। कहते 1 कपल हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन ए फैमिली। 1 कपल हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब एक कपल यह जाए, एक जोड़ा यह जाए, पति पत्नी का एक जोड़ा कहते यह जाए, ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ पेरेंट्स भी हैगे ने तो ਉਹਦੇ बच्चे भी हैगे ने, मतलब इन्हों के की ने पेरेंट्स भी होंगे, उरे पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है, उरे बच्चे भी होंगे। बच्चे च अपन पता कि बेटा है या बेटियां ने, वो अपन पता नहीं, ठीक है। कहते ए इज़ सन ऑफ सी, ए की है सन है सी का, पूरे बनाने ए की है सन है सी का, सी का की है सन कौन है, ए है, ठीक है। ये सन हो गया, सी का अपन पता नहीं कि मेल है फीमेल है, ए की है सन है तो मेल हो गया, ठीक है। एंड ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, ई की है अपनी डॉटर आ गई, ई की आ गई अपनी डॉटर आ गई ए दी, ठीक है। डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डी की है डॉटर है, ये अपन पता नहीं कितने आऊगा, डी की है डॉटर है कि एफ दी। एफ इज़ मदर ऑफ ई, एफ की है मदर है
ई दी, तो एफ की मदर है, देखो एफ ई तो यदा फादर ही है, तो जी मदर है तो यदी वाइफ होगी की दी एफ इज दी मदर ऑफ ई दी मदर है, तो उरे की आ जाऊँगा डी भी आ जाऊँगा, तो यदी सिस्टर की आ गई डी आ गई, ठीक है, डी आ गई अपनी सिस्टर। उस तो बाद कहते विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज द पेरेंट ऑफ कपल, आ कपल ने इन्होंने पेरेंट्स पूछे ने, देखो ए उरे हो गया, बी रह गया थी अपना, बी रह गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। आ की ने इन्हें पेरेंट्स आ कपल दी, कपल के पेरेंट्स कौन ने सी ते बी, अपन नहीं पता कि मेल ने फीमेल ने, उन्होंने कोई नहीं पूछा, बस इन्होंने पूछा कि पेरेंट्स कौन थी, तो सी ते बी अपने क्या आ जाएंगे पेरेंट्स आ जाएंगे, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते इन सर्टेन कोड मोंकी इज रिटन है, देखो मोंकी किमें लिखा जाता किसी कोड के विच MONKEY मोंकी किमें लिखा जाता, मोंकी लिखा जाता आप XDJMNL ये लिखा जाता अपना मोंकी। कहते टाइगर नू TIGER टाइगर नू किमें लिखा जाऊगा, ये अपना क्वेश्चन है। देखो सब तो पहले आप नंबरिंग कर लाँगे, M किन्ने नंबर जाता 13 ते, O 15 ते, ये 14 ते, ये 11 ते, ये 5 ते, ये अपना आंदा 25 ते, ठीक है। X किन्ने ते 24 ते, 4 ते, J आंदा अपना 10 ते, A किन्ना आंदा 13 ते, A आंदा 14 ते, A आंदा अपना 12 ते। तो देखो इत्थे 13 तो एक घट उरे 12 आ गया, इत्थे 15 तो एक घट उरे 14 आ गया, इत्थे 14 तो एक घट 13 आ गया, उरे 11 तो एक घट 10 आ गया, 5 तो एक घट 4 आ गया, 25 का एक घट 24 आ गया। हुण की करना T20 I 9 G अपना जो 7 E 5 R 18, तो 18 का एक घट कितना होंदा है 17, सॉरी अपना पहला लवांगे बी लवांगे, बी का एक घट किमें लवांगे 19, बी का एक घट 19 आ गया, 9 का एक घट कितना आ गया 8 आ गया, 7 का एक घट कितना आ गया 6 आ गया, 5 का एक घट कितना आ गया 4 आ गया, 18 का घट आ गया 17 आ गया, ठीक है 17 आ गया। तो 17 किन्ने होंदे क्यू ते, ये होंदा डी ते, ये होंदा एफ ते, ये होंदा एच ते, ये होंदा एस ते, क्यू डी एफ एच एस, ये आ जाना अपना डी अपना आंसर आ जाना, ठीक है। तो इसनूं भी आपां की करांगे नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करके किमें हो सकता है जल्दी सोल्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहते द कैलेंडर ऑफ ईयर 2007 विल बी सेम ऑफ द ईयर, कहते 2007 का जो कैलेंडर थीगा, ठीक है, वो सेम किस साल दे विच होऊगा, ठीक है। ये आपां की करांगे, देखो जेडे अपने लीप ईयर होंदे ने ना, जेडे अपने लीप ईयर होंदे ने ਉਹਦਾ सेम साल ਕੱਢਣ वास्ते आप 28 ਨਾਲ ऐड कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਲੀਪ ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ सेम साल ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ +6 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ +11 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ +11 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 28 ਫਿਰ 6 ਫਿਰ 11 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 2000 ਆਪਣਾ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2005 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2006 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2007 ਆ ਜਾਂਦਾ, 7 ਦਾ सेम साल ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2018 अपना क्या होगा सेम साल हो जाएगा। उस तो बाद एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। आप एग्रीकल्चर करते हैं, कहते रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज, देखो जी सिल्क की खेती की जाती है, सिल्क फाइबर की की जाती है, रेशम की जी खेती की जाती है, वो वास्ते अपन रेशम के कीड़े की पैदावार करनी होंगी है, ठीक है, उन्होंने पालना होंगे, तो उन्होंने जी खेती की जाती है उसनूं की कहा जाता है, उन्होंने जी पालन पोषण कराया जाता है, तो उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं सीरीकल्चर, ठीक है, उन्होंने सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लियो। देखो इस तरीके नाल हुंदा जद ये जिहड़े रेशम के कीड़े होंदे ने ये अपने कोकून बनाते हैं, इस तरीके नाल अपने कोकून बनाते हैं, तो इस कोकून नूं की करते हैं इंसान यूज़ करते हैं, इहनूं की करते हैं वो रेशम तैयार करते हैं। थोड़ा जिहा जिहड़ा प्रोसैस हुंदा ना थोड़ा जिहा अजीब हुंदा, मतलब की हुंदा देखो रेशम के जिहड़े कीड़े होंदे ने वो कोकून बनाते हैं आपदे लवे, ठीक है। कोकून नूं की करते हैं इंसान इस तरीके के लखां कोकून नूं इकट्ठे कर लैंदे, उहदे विच हजे भी रेशम का कीड़ा अंदर हुंदा, वो लखां कोकून नूं इकट्ठा करके वो गर्म पानी दे विच पा दिंदे ने, जिहदे विच की करदे ने जिहड़े रेशम के कीड़े हुंदे ने मर जांदे ने, ते उस तो बाद इन्हां दा कोकून जिहड़ा वो यूज़ कर लैंदे ने, तां इस तरीके दा प्रोसैस हुंदा ते सीरीकल्चर कहंदे ने, इहनूं सीरीकल्चर कहंदे ने, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कहंदे द SRI मैथड फॉर प्लांटिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ठीक है। जिहड़ा SRI मैथड है प्लांटिंग वास्ते वो किहड़ी क्रॉप नाल रिलेटेड है, किहड़ी फसल नाल रिलेटेड है जिहड़ा SRI मैथड है, तो इहदा आंसर आ जाऊगा, देखो इहदा आंसर आ जाऊगा अपना राइस, इसका आंसर किया जाऊँगा राइस, क्योंकि आर का मतलब ये जो आर है वो की है अपना राइस है। देखो सिस्टम ऑफ राइस
इंटेंसीफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसीफिकेशन, ये तुसी याद रखना है। इज ए फार्मिंग मैथडोलॉजी एम्ड एंड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ राइस, राइस की पैदावार बढ़ाने वास्ते किया गया है। ये होंगे पानी घट लगता, क्योंकि आपको पता राइस की जब आप प्रोडक्शन करते हैं, राइस की खेती करते हैं, वो पानी ज़्यादा चाहिए होंगे, पर ये पानी की लागत घट लगती है तो लेबर ज़्यादा होंगी है। लेबर ये ज़्यादा होंगी है, ये करते हैं यंग सीडलिंग होंगी है। देखो जो छोटे छोटे भरून होंगे ना, उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह बना के लाया जाता है, जिवें उरे ला ले उरे ला ले उरे ला ले, उस तरीके लाया जाता है। ये बहुत लेबर की लोड़ पैंती है, हत्थों नाल काम होंगे, ठीक है। वो किहड़ा प्रोसैस है, वो है अपना SRI, ठीक है। SRI फार्मिंग इनू कहते हैं, ठीक है। किस नाल रिलेटेड है, राइस नाल, ठीक है। इंटेंसीफाई का मतलब है इनक्रीज करना, किसी यील्ड बढ़ा देना, उनकी पैदावार नू बढ़ा देना। अगे बढ़ते हैं, कहते इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट AIARI जी पूसा के है बिहार, वाज एस्टैबलिश इन द ईयर। पहली गल ये हूँ बिहार के है नहीं, ये बारे आप गल करते हैं कि बिहार के नहीं है, इस टाइम हूँ दिल्ली के है, ठीक है। पहले बिहार के होया करती थी, बिहार के कितने पूसा के होया करती थी। तो IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जी पूसा के वो कदों किस सन के एस्टैबलिश हुई थी, तो आंसर आ जाएगा 1905। 1905 के एस्टैबलिश हुई थी, इसकी स्थापना रखी गई थी। देखो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉमनली नोन एज पूसा, जिन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते सिर्फ जो पूसा इंस्टीट्यूट आ गया या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया, दोनों एक चीज़ ने। इज ए इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। द नेम पूसा इंस्टीट्यूट इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इंस्टीट्यूट वाज ओरिजिनली लोकेटेड इन पूसा बिहार। था सब तो पहले कि बिहार के उस तो यदा नाम की कराया गया थी, बाद में इनू शिफ्ट कर दिता गया दिल्ली के, ठीक है। इनू दिल्ली के शिफ्ट कर दिता गया, उत्थे भी यदा नाम की रखा गया थी, पूसा रखा गया थी। एज ए इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 2011 इट वाज दैन रीनेम एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में नाम बदल के इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिता गया 1911 में। एंड फॉलो ए मेजर अर्थक्विक इन पूसा। देखो पूसा जो बिहार की जगह थी, उत्थे की भूचाल आ गए। इट वाज रिलोकेटेड टू दिल्ली इन 1936 इसनू दिल्ली के शिफ्ट कर दिता गया, ठीक है। तो इस तरीके तुम याद रखो 1905 इसकी स्थापना की गई। देखो उस तो बाद आपको याद रखना 1936 इसकी जगह बदल के इसनू कित्थे भेज दिता गया, दिल्ली के भेज दिता गया। तो 1905 पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। उस तो बाद देखो इसका लोगो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं IARI तो दिल्ली के, ठीक है। पूसा असल जो पूसा जगह है ये कितने बिहार के, पर बाद की करता शिफ्ट कर दिता गया भूचाल करके दिल्ली में। इस टाइम ये कितने दिल्ली के, ठीक है। ओके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आल्सो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। जी अपनी JNKVV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो JNKVV है, जो अपन कहते हैं जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिथे जबलपुर के एक किहड़े सन के एस्टैब्लिश की गई थी, अपने पूछा तो आंसर आ जाएगा 1964 के एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये अपने को देखो इसका लोगो है, ठीक है, इस तरह लोगो है। कहते जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आल्सो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज ए पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जबलपुर मध्य प्रदेश के इंडिया के एस्टैब्लिश इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इतने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है। ये UGC द्वारा रिकोगनाइज है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ये रिकोगनाइज है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा भी इनू की गया रिकोगनाइज दी गई है, ठीक है। ये की है लोगो है, ये लोगो तुम देख सकते हो एस्टैब्लिश इन 1964 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र थी वह कित्थे एस्टैब्लिश किया गया था, तो आंसर आ जाएगा पौंडीचेरी के इसनू एस्टैब्लिश किया। देखो ये अपने उस टाइम की पिक्चर है जब इसका उद्घाटन कर रहे थे, देखो पौंडीचेरी के, ठीक है। तो इसका 1974 अपना एस्टैब्लिश किया गया पौंडीचेरी के, ठीक है। पौंडीचेरी कह लो पुडुचेरी कह लो एक चीज़ है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, किस दे अंडर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर। अगले क्वेश्चन दे, ठीक है। अगे अपने को पंजाब की GK आ गई, पंजाब की GK कहते हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। पंजाबी ड्रामा का फादर किसनू कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा B ईश्वर चंद्र नंदा। ईश्वर चंद्र नंदा नू पंजाबी ड्रामा का फादर कहा जाता है। देखो ईश्वर चंद्र नंदा बारे आप कुछ पढ़ लें। देखो इन्हों का जो जन्म थी वो अपना 1892 होया थी, तो यह 1965 चले गए थी, ठीक है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा, इन्होंने पंजाबी ड्रामा का की कहते हैं फादर कहा जाता है। इस तो इलावा इन्होंने BA ऑनर की थी दयाल सिंह कॉलेज लाहौर तो, ठीक है। उत्थे बाद में प्रोफैसर भी बन गए थी, ठीक है।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀਤਲ ਸਾਗਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੈਟ ਕਮੈਂਸਡ ਔਨ 8 ਫੈਬ 1859 ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਨਸਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਟਨ ਬੈਲਟ, ਰੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੌਫੀ ਟੂ ਦ ਟੀ, ਕੌਫੀ ਟੂ ਟੀ, ਤੇ ਟੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਕੌਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਆਊਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਕਰਾਈ ਡੈਸ਼ ਸਪਲਿਟ ਮਿਲਕ, ਨਾ ਰੋਵੋ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਿਲਕ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡੂ ਨੋਟ ਕਰਾਈ ਓਵਰ ਸਪਲਿਟ ਮਿਲਕ, ਓਨ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਓਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਮਾਈ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਡੈਸ਼ ਮਾਈ ਪਰਸ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਇਟ ਟੂ ਮੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਮਾਈ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਮਾਈ ਪਰਸ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਇਟ ਟੂ ਮੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ 99 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 99 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈंने ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈंने ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।